guys, I hope you're doing great and amazing. So, yes, today's reading is something really powerful, okay? Because I am getting this thing that triple four, something is coming towards you, a communication is coming towards you, a significant communication is coming to you, trust me guys. And I'm literally not kidding, I was seeing a lot of butterflies today. When I'm filming this, just before like 5 to 10 minutes before, I was seeing a lot of butterflies. And yes, I can feel and sense that something positive is coming towards you. And also something a significant communication is coming towards you. And I can see just triple four energies a lot, and triple six for some of you, okay? So yeah, let's start. Matlab, I really was not understanding what is exactly going on, but yeah. Let's see what is coming. What are your current energies? Okay, first of all, I will check that. A lot of you are seeing butterflies. I'm literally sure butterflies and rainbows are your and lotus flower. Your root chakra is getting activated. Your mind is getting cleared. That these are the signs, okay? You're planning something. Yeah, so yeah, see, you have got a legit new vision, I can sense. And another card is letting go. Yes, you have finally let go of something that was not serving you, okay? I also feel that a lot of you, majority of you, have cleared your karma. And this ये जो केतु है, ओके, अभी आपको पता है कि केतु इसमें जा रहा है, okay? And Ketu is playing a lot of significant role, okay? Ketu is someone who is favoring you, a lot of you guys, okay? See, माया जाल से, पॉलिटिक्स से आप दूर जा रहे हो. आपके सामने सारी चीज़ें क्लियर हो रही है. जो भी कन्फ्यूजन था, केतु इल्यूजन्स जो था, वो सब आगे बढ़ के आपको रियलिस्टिक चीज़ों को क्लैरिटी दे रहा है कि क्या चीज़ें हैं, क्या करना है, हाउ यू आर अमेजिंग. आप किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है दैट आपने कोई नकाब पहना था दूसरे लोगों के हिसाब से, वो नकाब उतर रहा है. फाइनली इट हैज़ रिमूव्ड एंड यू हैव रिमूव्ड इट बाय योर सेल्फ. एंड बिकॉज मुझे ये जो बॉटम ऑफ द डेक है, ओके, दिस कार्ड, अगर आप देख सकते हो, दिस कार्ड इज लिटरली शोइंग मी दैट ये इंसान है ना, खुद ही ये जो मास्क था, जो उसका वो रियल सेल्फ नहीं है, वो निकाल दिया है, okay? I don't know, but this is I feel very positive. Why? Because you were not happy behind the mask. If this is actually showing that you were happy, then actually you were not happy. It was very opposite of it. For some of you, there were other peoples who are showing you the reality of what they are, what they were all this time, and you're understanding their deep down emotions and tensions टुवर्ड्स यू. किसी किसी को समझ में आ रहा है कि कितने जहरीले लोग थे. ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई एम रियली सॉरी टू से दैट, बट या, यू आर गेटिंग ऑल दिस थिंग्स, ओके? यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट कितना मतलब कि लोगों के बारे में आप सुन सुन के, है ना, you are someone who was literally got into a never ending loop or cycle that was into illusions. मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था आपको कि क्या करना है, कैसे करना है, but you were feeling very negative about yourself, okay? And finally you removed off that mask. You and for some of you, you took that mask, you acted upon it and let it go, okay? आपका जो कर्मा था, आपने वो फुलफिल किया है. एंड यू आर सेंसिंग दैट कि आपके अंदर से कुछ तो ऐसा है जो शिफ्ट हुआ है, ओके? दिस इज हैपेंड मोस्टली टिल येस्टरडे, विच इज़ आई थिंक आज की डेट जो है, आई डोंट नो, सी
ओके आज की जो डेट है अब मुझे वो भी नहीं पता है, मतलब आप समझ लीजिए कि मेरा आई एम इन समवेयर एल्स ओनली. आई वाज लाइक फीलिंग दिस थिंग दैट वेयर एम आई. ओके या नंबर 7. See, I told you number 7. That is so true. So, number 6, number 7, number 8 are very significant. Maybe this is your birth dates, and these dates are very important. Why? Because uh, जो ये डेट्स हैं दे आर हेल्पिंग यू टू लेट गो ऑफ समथिंग एंड मेकिंग यू मोर कम इन टू योर ओन होम्स. ओके जो चीज़ें वर्क नहीं कर रही थी, जो चीज़ें आपको नेगेटिव ब्लॉकेजेस दे रही थी, और जो मेनली जो कर्मा था वो आपने ऑलमोस्ट लेट गो कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है. नाउ यू आर सरेंडरिंग, यू आर अंडरस्टैंडिंग कि कोई कोई जो चीज़ें थी वो डीप डाउन आपके अंदर थी एंड यू आर फीलिंग रिलैक्स्ड आफ्टर दैट. किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आप कार्मिक प्रेयर कर सकते हो, होपोनोपोनो प्रेयर, या फिर शिव जी की जो कार्मिक प्रेयर है वो. ओके यू हैव डन समथिंग और द अदर. आप लोगों ने कुछ ऐसा किया है कि बाबा बस भगवान जी आप ये ले लो और मुझे शांति दे दो, बस आई एम जस्ट डन, ऐसा आपने बोला है. ओके यूनिवर्स को. एंड यस उसके बाद में किसी किसी के लिए एक शिफ्ट हो सकता है, एक हल्का सा पन हो सकता है, आपको फील हो रहा है. उसके बाद में आपकी जो माइंड की जो ओवर थिंकिंग है वो बंद हो गई होगी या फिर लेसन हो गई होगी. आपको कहीं तो पॉजिटिव रे दिख रहा है, पॉजिटिव वाइब फील हो रही है. आपका हार्ट चक्र जो है वो कहीं ना कहीं आपका हार्ट बीट फील करवा रहा है कि यस इट इज़ कमिंग इनटू हीलिंग मोड्स. ओके आपको एक नया पाथ दिख रहा है. आपको जहाँ कुछ चीज़ें दिख नहीं रही थी वहाँ पे अभी चीज़ें दिखने लग गई है. यूनिवर्स इज शोइंग मी दैट इज दिस इज योर करंट एनर्जीज. लेट्स सी व्हाट मोर. But a lot of you are into doing something for yourself, for the healing of yourself. And yes you have completed the karma in this full moon. And इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए यूनिवर्स. एंड इनफैक्ट आपको कोई गुड न्यूज़ भी मिली है या मिलने वाली है. एंड दिस इज़ गोइंग टू हैपन लाइक आफ्टर seeing this video max to max 7 days. That's it. The timeline is 7 days only. किसी किसी के लिए 24 डेट इम्पोर्टेंट हो सकती है, या 24 अप्रैल, 24 आवर्स. ओके यस यू विल सी. आई टोल्ड यू द फुल. आपने लेट गो कर लिया है. नाउ यू आर मूविंग गोइंग विद द फ्लो. दिस इज योर बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी. एंड ट्रस्ट मी गाइज दिस इज योर करंट एनर्जी दैट जो होगा देखा जाएगा. You're just dreaming. You're just dreaming and you're feeling that amazing bliss of your life. And yes, you're seeing the possibilities. I told you, right? You're seeing the possibilities. जहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल दिख रहा था, आपने स्ट्रगल को पीछे छोड़ दिया है. एंड यू आर जस्ट सीइंग द पॉसिबिलिटीज़ बिकॉज यू हैव टुक वन स्टेप back. Okay and you are viewing as a you're trying to view this whole scenario very differently because आपको न्यू विजन भी आया है. आपने एक हॉल्ट लिया है अपने लिए. okay you took that breath. okay fresh air of breath and that is helping you to see something is coming towards you. Trust me, this possibility, this opportunity is coming towards you. yes you are into the abundance mode. You are right now in the abundance mode. You are in the receiving mode. okay and you are have told, yes see I told you celebration. oh my god this card was like this. okay like this and ये दोनों कार्ड मुझे दिखे. एंड ट्रस्ट मी ये कार्ड हिडन था. समथिंग आई एम टेलिंग यू, यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट वेरी सून जस्ट बिकॉज यू हैव सरेंडर्ड एंड लेट गो. एंड यू आर मतलब आपको जो भी एक एक स्टेप आपको यूनिवर्स दे रहे, यू आर गोइंग विद द फ्लो. आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हो ये सारी चीज़ों को. एंड दैट इज़ गोइंग टू यू आर फीलिंग दिस इन योर गट्स इन शॉर्ट, या आप फील करने वाले हो बहुत ही जल्दी. दैट इज़ योर करंट एनर्जीज, वेरी पॉजिटिव एनर्जीज. ओ माई गॉड व्हाट इज़ हैपनिंग. सो लेट्स सी क्या आ रहा है. लेट्स सी क्या आ रहा है. लेट्स सी क्या आ रहा है गाइज. आपके लाइफ में क्या आ रहा है. 444 incoming call, 444 incoming call. Literally that is what I'm seeing. Incoming call of opportunities and possibilities.
क्या आ रहा है यूनिवर्स ये मंथ में? आप यूनिवर्स क्या आ रहा है, क्या आ रहा है मेरे व्यूवर्स के पास, क्या आ रहा है? दिस इज़ अ वेरी फास्ट मूविंग एनर्जी. कैन यू सी हाउ आई एम लिटरली एक्साइटेड. मतलब आपको कहीं ना कहीं पता है कि ये चीज़ हो चुकी है. यू आर लिविंग दैट ड्रीम लाइफ ऑफ योर्स. वॉट एवर डिज़ायर यू हैव, यू आर लिविंग इट, यू आर फीलिंग इट नेचुरली, यू आर फीलिंग इट. ओके क्या आ रहा है? ये चीज़ें ना बहुत टाइम ली है आपके लाइफ में आने के लिए. कुछ अच्छी चीज़ है एंड लिटरली आपके लाइफ में बहुत टाइम हो चुका है कि आपके लाइफ में सेलिब्रेशन ही आया. अगेन 3 of Cups. सी आपके लाइफ में अगेन देर इज़ अ समथिंग दैट इज़ ह्यूज कमिंग टूवर्ड्स यू एंड यू आर नॉट नोइंग इट. वो आपसे हिडन रखा गया है, सीक्रेट रखा गया है. बट यस आपका, आपके हार्ट, यूनिवर्स ने आपको देखा है, आपका हार्ट बहुत ज़्यादा टूटा है. ओके बिकॉज 3 of Swords का कार्ड आया है. आई एम लिटरली फीलिंग दैट अ लॉट ऑफ यू हैव लिटरली गॉन थ्रू हेल काइंड ऑफ अ ब्रेकिंग ऑफ हार्ट सीजन्स. ओके आपका जो ब्रोकन सीजन था मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्रोकन सीजन था. आई कैन swear on that. Why? Because it literally hurt you, it literally shredded you in वेरी वर्स्ट वेज. आप बहुत रोते थे, आप न्याय मांग रहे थे. ओके एंड यूनिवर्स इज सेइंग, सी द बॉटम ऑफ द डेक. मैंने न्याय बोला एंड देन आई डोंट नो व्हाई आई फेल्ट लाइक चेकिंग एंड दिस इज द बॉटम ऑफ द डेक. न्याय बोला और न्याय का कार्ड आ गया. और क्या चाहिए यार? यू आर गेटिंग जस्टिस. ओ माई गॉड, वट एवर इट इज, you are getting justice. This incoming call is from the divine itself, guys. This is so positive reading, literally so positive reading. एंड मुझे ऐसा फील हो रहा है जो भी आपके लाइफ में इम्बैलेंस था, आपके लाइफ में जो भी इधर उधर हो रहा था, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था, आपके लाइफ में अभी बहुत मेजर सेंस में जस्टिस आ रहा है. बिकॉज यू डिजर्व इट. यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट. यू हैव, आई नो इट वॉज यूनिवर्स, पता नहीं मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है आपके एंजल्स से दैट वी नो दैट यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट. हमने देखा है आपको रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए कि ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझाइए. पर हम आपको समझा नहीं सकते थे बिकॉज इट्स वॉज टाइम फॉर यू टू गो साइलेंटली. okay, to shed your snake skin, the karmic skin. पता नहीं मुझे ऐसा लगा कि अभी जैसे कोई सांप है ना, एकदम साइलेंटली जैसे वो शेड करता है स्किन, वो विजन आया और मुझे लेजिट गूज़बम्स आए. बिकॉज आई लिटरली, मुझे वो आवाज़ सुनाई दी. एंड येस एम्बुलेंस की भी आवाज़ है. सो या मे बी यू आर लिब्रा एज वेल. ओके जस्टिस का कार्ड मुझे तुला राशि ज़्यादा फील करवा रहा है. एंड आई लिटरली फील दैट यू गाइज आर इंसेन. ओके यू हैव गॉन थ्रू अ हेल लॉट ऑफ थिंग्स एंड आई रियली अंडरस्टैंड. मतलब ऐसा था कि आपको ऐसे सुसाइडल थॉट्स भी आते थे. आपको ऐसा फील होता था कि यार क्या चल रहा है मेरे लाइफ में, ये होने वाला है, कुछ होने वाला है या नहीं होने वाला है, मैं कुछ गलत किया है कि पिछले लाइफ टाइम्स में समथिंग दैट is like this. You were feeling that things, you were feeling so deeply that now you have let go. Okay you have let go, you have literally worked on your self. आपने surrender कर दिया जो होना होगा अभी. And yes, when you did that thing, you detached from it, you moved from it, you accepted it and you surrendered it. That is that time when you are coming into your zone. Universe is granting you justice in this April month. Okay 444 k energies, it is a huge justice that has been served to you in every form. Okay कोई कमिटमेंट था, कम्युनिकेशन था जो ब्लॉक था, आपको चाहिए था कि वो कम्युनिकेशन आए. इट इज़ गोइंग टू कम. सी एक जॉब ऑफर लेटर या एक जॉब ऑफर कॉल डायरेक्टली, आई डोंट नो, बट ये जॉब ऑफर या एक ये कॉल है ना पास्ट रिगार्डिंग है. ओके यू कैन गेट अ कॉल फ्रॉम अ firm that has literally
rejected you in past or made you feel hold like, but they are going to reach you out again. ये बहुत ही rarely 1 or 2% के लिए या 3% के लिए लोगों के लिए होने वाला है. यस 6, आई डोंट नो नंबर 6 मुझे आपका बर्थ डेट हो सकता है, नंबर 3 हो सकता है, नंबर 9 हो सकता है, और 369 मेथड आपने क्या हो सकता है, आई डोंट नो, बट मुझे अभी ये रियलाइज हुआ दैट दिस इज गिविंग मी सम काइंड ऑफ अ हिंट एंड दिस इज लाइक 369 7 नंबर अगेन केतु का. ओके केतु जो है वो आपके लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें करने वाला है. केतु महाराजा आपको ब्लेस करने वाले हैं, आपके एंसेस्टर्स ब्लेस करने वाले हैं, ट्रस्ट मी. एंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड, समथिंग दैट इज गोइंग टू डिलीवर जस्टिस, the news, the communication that is going to deliver you the justice for your hard work, for everything that you went through. Okay, and you, if you were knowing that you were on the right paths, okay, you will be getting the justice with the amazing thing, and आपको फल मिलने वाला है गाइज, ट्रस्ट मी. क्लेम द एनर्जीज, लिटरली क्लेम द एनर्जीज. लाइक करिए, कमेंट करिए दैट आई क्लेम द 444 एनर्जीज राइट नाउ. आई वेलकम दिस communication of positivity in my life. Okay, ट्रस्ट में ये कम्युनिकेशन आपकी लाइफ बदलने वाला है. दैट इज़ समथिंग. ये कम्युनिकेशन एग्जैक्टली जॉब का हो सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी का हो सकता है, कोई जो इंसान आपको हर्ट करके चला गया होगा और आप लोग को लग रहा होगा कि यार ये अभी नहीं आएगा, जाने दो, छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, अभी बस हो गया. आपने आगे बढ़ा है no matter what, but this person is changing because right now whatever your desire was, it is coming into the fruition. The end of that era, the way you felt like it is ended and everything that is completed, it is not ended, it is completed. This is something that you do not see, it is coming towards you because yes, the lovers का कार्ड है, the lovers का कार्ड है. यू आर नॉट सीइंग दिस, बट आपको लग रहा है ये खत्म हुआ है, बट दिस इज व्हेन इट स्टार्ट्स एक्चुअली. इट्स व्हेन इट, दिस इज व्हेन यू हैव द पावर टू मैनिफेस्ट एवरीथिंग. आपने अपने ऊपर काम कर लिया, यूनिवर्स कह रहे अभी आप जो बोलोगे, जो मांगोगे, वो आपको मिलने वाला है. एंड येस, इट इज़ द एंड. आपको 10-10 भी दिखेगा या 111 या 11-11 जब ये चीज़ें होने लग जाएगी. ओके ये चीज़ जब भी आने वाली है उसके तुरंत पहले, लाइक कुछ घंटों पहले आपको ये चीज़ें दिखने लग जाएगी. येस, यू आर मैनिफेस्टिंग. यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि बी पॉजिटिव, बी सिंसियरली पॉजिटिव. टेंशन मत लीजिए, स्ट्रेस आउट ना करिए. नेगेटिविटी थोड़ी बर्डन कर सकती है, बट यूनिवर्स बोल रहे हैं कि नाउ इज़ दैट थिंग दैट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू. it is grounded, it is coming towards you. This is something that you were literally wanting. ये एग्ज़ाम में क्लियर होना हो, मतलब आपको ना बहुत टेंशन दिया इस चीज़ ने. एक टाइम पे, एक ज़माने में बोल रही हूँ, वो ज़माना लगे वो गाना भी कोई सुन रहा होगा, पता नहीं क्यों, बट आया. डू लेट मी नो, ज़माना लगे या आपको सुनना चाहिए वो गाना, आई डोंट नो, बट किसी की कम्युनिकेशन सॉन्ग्स के रिगार्डिंग या म्यूज़िक रिगार्डिंग भी आ रही है पहले ही. ओके, सो या डेफिनेटली मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट डाउन करके कि आपको क्या लगा उस गाने को सुन के भी. आपके मैसेजेस आपको मिल गए होंगे उस गाने से, मुझे ये पता है. पता नहीं तुमसे ही गाना भी आ रहा है, तुमसे ही दिन होता है, आई डोंट नो क्या लिरिक्स है, बट आई एम नॉट गुड विद इट. Yeah, so that is something. This opportunity is very stable, that is coming towards you. It is just waiting for some of you. It is just waiting for you to let go of this stress and completely surrender. Okay, आप manifest जो भी कर रहे थे वो चीज़ आ रही है आपके पास. Let's see. पता नहीं एक रेस्टोरेंट होटल रिलेटेड भी समथिंग मुझे कुछ दिख रहा है. एंड येस, आई डोंट नो, बट मे बी आप कोई होटल या इसमें जाने वाले हो विच विल बी सिग्निफिकेंट और समथिंग लाइक दैट. यू आर गोइंग समवेयर, यू आर गेटिंग दैट अपॉर्चुनिटी ऑफ मूविंग समवेयर एज वेल. आई फील लाइक मम्मी इतने सारे नहीं चाहिए. आज मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ, पता नहीं क्यों, बट मुझे ये रीडिंग बहुत टाइम बाद इतनी अच्छी बेस्ट रीडिंग आई है गाइस. ट्रस्ट मी, फाइनली यू हैव मूव्ड ऑन.
फाइनली यू गाइज हैव मूव्ड ऑन. लाइक आपका मन है ना मूव हो गया है, आप मूव ऑन नहीं हुए हो, बट यस ही द टावर मूवमेंट. सारी चीज़ें है ना आपके लाइफ में हिल चुकी है और आपको आगे बढ़ा चुकी है, बिकॉज यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि आपको कट करके मूव ऑन करना है, आपको वो एक स्टेप लेना है. तो आप पहले प्लानिंग ही करते रहते थे, पर अभी आपने प्लान को छोड़ दिया है और आप एक एक स्टेप आगे ले रहे हो उस प्लानिंग के रिगार्डिंग. ओके, देर इज़ पीस एंड पैशन एंड लव दैट इज़ कमिंग. और मैं बोल रही हूँ ना कि आप लोगों के पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है जो आपको आपके हाथ में है कि आपको मूव ऑन करना है कहीं पे. ओके, लोकेशन चेंज होने वाला है किसी किसी का. ये चीज़ केवल है और आपको वही चाहिए था. मे बी आपके वीज़ा अगर अटक गया था तो वो उसकी गुड न्यूज़ आने वाली है. आपके वटका हुआ नहीं रहेगा अभी, वो आने वाला है आपके पास. आपके हाथों में वो पासपोर्ट वीज़ा रहेगा, ऐसा यूनिवर्स कह रहे हैं. ओके, लेट्स सी व्हाट मोर. एंड या यू आर टेकिंग दोज बोल्ड स्टेप्स. ओके, yeah, I know that you're immature a little bit, you're not understanding exactly what you have to do, but universe is saying कि छोटा छोटा क्यों ना हो आगे बढ़ रहे हो. और अभी आपको वो दिख रहा है. पहले तो आपको लग रहा था कि मैं बढ़ रहा हूँ या नहीं बढ़ रहा हूँ, पर अभी आपको दिख रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो. और आप जैसे बढ़ रहे हो ना तो लोगों को बहुत बुरा लग रहा है, एंड यू आर ओके विद इट, दे आर गोइंग अवे. आप किसी किसी को ऐसा लग रहा है आप अनफिल्टर्ड सारी चीज़ें जो आपको लगता है वो आगे रख रहे हो. वैसे भी मन में रख के बुरा क्यों फील करवाना है अपने आप को. वैसे भी लोग बुरा फील कम करवाते हैं क्या, तो खुद को भी मतलब कम्युनिकेशन आपका अच्छा होने वाला है. आप आपके दिल दिमाग जहन में जो भी होगा आप बोलने वाले हो. बट यस, अब यूनिवर्स कह रहे हैं कि अच्छे से बोलना, बैलेंस होके बोलना. जस्ट बिकॉज किसी और ने घटिया बोल दिया है तो इमोशंस में बह के आपको वैसा नहीं करना है. ओके, यूनिवर्स इज सेइंग ये अपॉर्चुनिटी बहुत लाइक किसी किसी के लिए स्मॉल से शुरू हो सकती है. मैंने कहा ना कि 1 स्टेप एट अ टाइम आप लेने वाले हो. यू आर इन अ टॉडलर फेज. सी, ये छोटा छोटा स्टेप्स है, बट वो छोटा छोटा चीज़ करके बड़ा होने वाला है. एंड इट इज़ गोइंग टू टेक यू टू द anonymous invisible adventure where you will see that everything was worth it. The adventure was so amazing that you feel that it was literally making healing you as well as making you achieve and learn a lot of things. Okay, also मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पार्टनर या पर्सन कम्युनिकेट करने वाला है. दिस इज़ अ पास्ट पर्सन एज वेल एज देर इज़ अ न्यू पर्सन. या और जो भी एक इसमें से दोनों में से एक ऐसा इंसान है जो इमैच्योर्ड है और आपको पता है कि कौन है. ओके, एंड यस, ये जब भी आएगा, ये न्यूज़ जब भी आएगी आपके पास, you are being called to do some observation. Do not get into it directly. आपको बोला जा रहा है ऑब्जर्वेशन करो और फिर एक्शन लो, वरना गलत चंगुल पे फिर से फंस सकते हो, लूप में फंस सकते हो, एंड फिर से कन्फ्यूजन हो सकता है. यूनिवर्स कह रहे हैं एंड फिर हम वो भी कुछ नहीं कर सकते फिर आपके लिए. ओके, यस, एक कॉल भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो शायद, या कॉल आने वाला है आपको. कम्युनिकेशन पक्का आने वाला है, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट आई एम कमिंग, बिकॉज आई एम गेटिंग दैट कॉल. ट्रस्ट आई वॉज मतलब ये मेरी मम्मी का कॉल है, बट ठीक है, कॉल है, आ रहा है. कम्युनिकेशन इज ऑन द वे, इट इज ऑलरेडी केम. ओके, सो दिस इज literally telling you that you really need to just be in this amazing aura of yours, energetic mode, positive sense. खुद पे ऊपर फोकस करिए, बिकॉज आई एम लिटरली टेलिंग यू कि अभी आपके सामने जस्ट एक कॉल आया है, एंड I'm not kidding it. This is a sign from the divine energies that 444, the communication is on the horizon. It is already on its way. It has in 5D वो आ चुका है, किसी किसी के लिए 3D में भी आ चुका है. एंड yes, वो आज से ही शुरू हो जाएगा. जब भी आप इस वीडियो को देखोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे अगर आप नए इंसान हो तो, और ऑलरेडी आपने अगर कर लिया है तो बेल आइकन हिट करोगे एंड कमेंट डाउन करोगे, क्लेम करोगे एनर्जीज दैट यस
आई एम इन द रिसीविंग मोड, ट्रस्ट मी। ये ज़रूर करना है आपको। आपको जितना भी मैंने कहा है ये होने वाला है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी शंका नहीं है, आशंका नहीं है। जो भी आप बोलो, नेगेटिव वर्ड्स है ही नहीं यहाँ पे। इसमें आने वाला है, मतलब आने वाला है। एंड योर एनर्जी इज लिटरली फ्लोरिशिंग एंड ब्लॉसमिंग एंड यू आर बिग मैनिफेस्टिंग क्विकली। आप शुरू करो एक मैनिफेस्टेशन से, आपको ज़रूर मिलेगा एंड दैट इज़ माई प्रॉमिस टू यू। और अगर आपको चाहिए कि मैं एक मैनिफेस्टेशन, छोटा सा मैनिफेस्टेशन का टेक्निक या कुछ ऐसा वीडियो लेके आओ, तो डेफिनेटली डू लेट मी नो इन द कमेंट डाउन सेक्शन। ओके गाइज, बाय, लव यू एंड गॉड ब्लेस यू गाइज विद ऑल दिस अमेजिंग ब्लेसिंग्स। मैं चाहती हूँ कि आप सारे के सारे रिसीव मोड में रहे एंड डेफिनेटली अगर आपने इक्वल बैलेंस गिव एंड टेक किया है इस वीडियो के साथ, तो डेफिनेटली आपकी ये जो अपॉर्चुनिटीज़ है, ब्लेसिंग्स, ये आपके पास 101% आएगी एंड यू विल डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट डाउन सेक्शन कि हुआ है ये करके। ओके, बाय।